वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ रिजल्ट्स के बाद आराम से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ Jan 26 का, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सी इफ़ यू आर फेलिंग योर एग्जाम्स कंटिन्यूसली नो देन देयर इज़ अ पैटर्न। ओके, यू आर फॉलोइंग इन दैट लूप. I am only here to help you guys. Okay, so this video is not some sort of a planner or something, but definitely this gives you a reality check. I can only give you a reality check, but I cannot tell you ki you should put 7 days for SFM, 10 days for FR. That becomes stupidity because each and every student has his own interest or his own way of approaching towards the subject. Okay, you people know where do you stand in that subject. You people know how many days it takes to complete. Okay, but I can only give you a reality check where you can actually come up with a proper strategy. Okay, again I'm telling you planning से कुछ नहीं होता, execution से results मिलते हैं. Okay, so watch this video till the end. I can surely tell you that this video will be helpful for you guys. Okay, so first of all we are at the end of October. Okay, hardly we have 2 months time. January 6th को exams है. It looks like we have 2 months time, but hear me carefully. If you take group 1, if you are writing only group 1, then your target date should be December 20th. ठीक है, December 20 के बाद 5 days will go for your audit if you are writing only one group. Okay, audit subject को December 25 तक, 26 से लेके 30 your SFM, फर्स्ट से लेके 5th your FR. Okay, so December 20 is your target date. If you are writing both the groups, then target date should be your November 30th. Hardly 1 month if you are writing both the groups. See, if you are starting now, best option is go for one group. Okay, don't go for both the groups. If you have already prepared, if you're already done with the portion, if you're already doing your revisions, then go for both the groups. Okay, so again both groups के लिए November 30th, which is like 1 month away. अगर आपका सिंगल ग्रुप है December 20th. अगर December 20th के बाद you will be doing revision only particular subjects as I said. Okay, तो अभी December 20 तक क्या क्या करना या November 30th तक क्या क्या करना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक मॉक टेस्ट लिखना ही चाहिए. आप लोगों को ना मॉक टेस्ट लिखना ही चाहिए. ठीक है, मॉक टेस्ट लिखना बोले तो एक पेपर लेके लिखना वैसा नहीं. इफ़ आई एम राइटिंग FR सब्जेक्ट नो, इफ़ आई एम राइटिंग टुमारो 2 o'clock, आज का दिन पूरा, टुमारोज हाफ ए डे, आई हैव टू ट्राई एंड मैक्सिमम आई शुड ट्राई टू फिनिश ऑफ द एंटायर पोर्शन एंड सिट एट 2 o'clock एंड राइट द एग्ज़ाम. वो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट लाना चाहिए. यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स ला रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे द गेम इज़ अबाउट 1.5 days, वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन दैट 1.5 days और नॉट. देयर आपको रियलिटी चेक आ जाता कि क्या क्या अगर हो रहा कि नहीं हो रहा, कौन से टॉपिक्स छूट रहे. एक दो तीन टॉपिक्स चले जा रहे ना, नो प्रॉब्लम, इन द अदर रिविजन वी कैन कंप्लीट इट. ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स नो यू हैव टू कंप्लीट इट इन 1.5 days. ओके, सो अगर आपको नहीं हो रहा है, अगर कोई टॉपिक्स छूट रहे, make sure that you are covering that in the next round of revision. Okay, so at least 70 to 75% has to be done. That is the what do you say, main aim of writing mock test. Not writing mock test and getting 50-60 in your mock test paper, because वो पेपर नहीं आने वाला है. आपको पूरा रिविजन खत्म करना है. The game is about 1.5 days, whether you are able to complete the entire revision in that 1.5 days or not. ओके, सो मॉक टेस्ट ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ये मैंडेटरी है, सब लोगों को ख़त्म करना है. चाहिए बाय December 20th यू हैव टू राइट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट. योर मॉक टेस्ट रिविजन, मॉक टेस्ट एंड ऑल शुड बी डन बाय December 20th. तो अगर December 20th मान के रखो, अगर 3 सब्जेक्ट्स लिख रहे हो आप, सो बाय फ्रॉम December 10th ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. अगर 10th को एक लिखे, फिर 15th को एक लिखते और 20th को एक लिखेंगे, राइट. So this is how it works. So December 10th is your cutoff date. You have to finish by December 10th. That is like 40 days from now. Okay, so one more thing, when you are writing mock test or when you are preparing, at least do revision for like 5 to 6 times each and every subject. If you are doing only one group, well and good. I support people who are writing one group, because now exams are held 3 times in a year. There is no rush. आराम से एक ग्रुप को लेना, आराम से 5-6 रिविजन्स करना. और टफ फॉर टफेस्ट पेपर ऑल्सो नो, इवन इफ इट इज़ अ टफेस्ट पेपर यू विल बी एबल टू स्कोर 40 to 45 मार्क्स आराम से, even if it is a tough paper. Okay, if you do proper revisions. Okay, so that is more important. RTPs, your what do you call, ICA का objective type questions, MCQs, case scenarios,
try to do even those as well. The more questions you practice, no, the more concept clarity you will be getting. Okay, अगर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लिया ना तो you will be able to answer those. Okay, so these are your top of the list mock test papers, RTPs, case scenarios, ICAs का study material obviously. Okay, so this should be your top priority and finish all of them and then give your mock test. Okay, and then another one is don't go for 100% of the syllabus. See 1.5 days में ना तुम कितना भी मतलब कितने भी रिविजन्स करो, कितने बार भी पढ़ चुके हो ना, 1.5 डेज में पूरा पूरा सिलेबस नहीं होता है. स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक DT, योर ऑडिट. ओके, ये सब्जेक्ट्स ना बहुत टाइम लेते हैं. ओके, सो देर आर सर्टन टॉपिक्स विच गिव यू लेस नंबर ऑफ मार्क्स इवन दो इट इज़ कंपलसरी. लाइक ऑडिट में ना बैंक ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है, तुम्हारा IT वाला एक चैप्टर है वेर कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही चाहता है उसमें से, बट द सिलेबस इज़ टू वास्ट. मैं तो छोड़ दिया उन लोगों को. वो छोड़ के ना बाकी के बहुत बार रिविजन्स करा, बिकॉज अगर बैंक ऑडिट में से क्वेश्चन आ गया ना तो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आता मैं. ऐसा नहीं कि उसको कम्प्लीटली छोड़ के आता हूँ. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो देर आर सर्टन टॉपिक्स वेर इवन दो दे आर इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इग्नोर दैम एंड प्रिपेयर द रेस्ट 75-80% ऑफ द सिलेबस ना मस्त प्रिपेयर करके जाओ. अगर उसमें से क्वेश्चन आया ना, यू आर गोइंग टू राइट समथिंग रिलेवेंट, इवन इफ नॉट 100% करेक्ट, समथिंग रिलेवेंट लिख के आना चाहिए आपको, उतना तो रहना चाहिए. ठीक है, so that is more important. Don't go for 100% of the syllabus. Anyways, you will not be able to look at the entire syllabus 1.5 days before. तो थोड़ा छूटने दो, बाकी का अच्छा कवर करो. परफेक्ट. तो ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन तक. अभी आता है एग्ज़ाम. फ्रॉम द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन पेपर, वन थिंग शुड बी इन योर हेड. अभी क्वेश्चन पेपर कैसा आता मेरे को, मैं लिखता कि नहीं, ये सब नहीं, ये सब दिमाग में से हटा दो. एक ही चीज़ चलना चाहिए, वो है कि जैसा भी क्वेश्चन पेपर आओ, आई एम अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स. 2 o'clock से बाय द टाइम यू आर राइटिंग योर आंसर्स, फ्रॉम दैट मोमेंट यू शुड बी वेरी फास्ट. यू शुड नॉट इन्वेस्ट 15 minutes for 5 marks question. From that moment, if you properly strategize, no, you will be able to attempt 100 marks. Attempting all the questions is crucial. मैं तो बोल रहा हूँ, जब तुम अटेम्प्ट करके आते हो ना, and then when you're preparing for like 75-80% of the syllabus, like you're doing multiple revisions, wrong होने के chances बहुत कम होते हैं. Something relevant you will write and come. Okay, even though it is a toughest paper. Okay, with experience I'm telling you, I'm not telling you just like that. I have experienced this, so I am telling you guys, go and write 100 marks. 2:30 को, या क्या बोलते हैं वो 4:30 के बाद वो जो प्रेशर आता है ना लास्ट हाफ एन आवर में, नो, यू शुड नॉट फेस दैट. यू शुड बी वेरी मच स्मार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, तब जाके वो कंप्लीट होता. ओके, एंड देन ये जो पीरियड है ना भाई, अभी जो 1 month 2 months का पीरियड है, अवॉइड फोन्स, सोशल मीडिया को अवॉइड करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट, रील्स में ना घंटे घंटे चले जाते हैं ऐसा. व्हेन यू आर वॉचिंग द रील्स 1 hour चले जाएंगे तुम्हारे, बहुत इफेक्ट होता वो. राइट, हैव वन पर्सन इन योर लाइफ, जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो या योर लव्ड वंस हो, एक पर्सन के साथ बात करो जो तुमको 100% सपोर्ट दे रहे, वे यू फील गुड टॉकिंग टू दैम. ओके, वेयर दे आर गिविंग यू 100% सपोर्ट. सो कंपटीशन नहीं रहना. देखो, दे आर सपोर्टिंग यू एंड यू आर सपोर्टिंग देम. ओके, हैव वन पर्सन लाइक दैट एंड कंप्लीट योर एग्जाम्स. ओके, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप लोग कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, right, so please do follow this. Write at least 1 mock paper, complete the entire syllabus and write 1 mock paper. That is very important. बहुत सारे लोग ये नहीं करते and then वो ट्रैप में गिर जाते हैं. ठीक है, तो attempt after attempt वो चले जाता रहता, एज भी निकलते रहता. तो to avoid all those things, no, please do follow this, I'm telling you. And if you are not able to decide between 2 groups and 1 group, go for 1 group. 4 महीने में अगेन देर इज़ अनदर एग्जाम. इवन इफ यू टेक फ्रॉम नाउ, विद इन 7 months यू विल बी एबल टू कंप्लीट बोथ द ग्रुप्स. सिंगल ग्रुप लिखो, आराम से हो जाएगा, आराम से. ओके, इवन द टफेस्ट पेपर्स ऑल्सो, नो, इफ यू आर डूइंग मल्टीपल रिविजन्स, द चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग आर हाइएस्ट. ओके, बट इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ द ग्रुप्स विथ एक्सपीरियंस, आई कुड नॉट मेक इट. व्हेन आई वेंट फॉर बोथ द ग्रुप्स, नो, आई कुड नॉट मेक इट. आई यूज्ड टू फील लाइक, अरे मेरा एज चले जा रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, I cannot wait for another 6 months. और मेरा जो ईगो होता है ना स्टूडेंट का, that will not let you come down to single group again. Once you start rating both the groups, no, you will be in that loop only. Okay, so don't go based on that. Don't rush in life. ठीक है, understand the patterns.
ऐसे ही मौका दे रहा है तुमको, एक ग्रुप लिखने का मौका दे रहा है। अभी तो 2 बार लाइक 3 times इन ए ईयर एग्ज़ाम रख रहा है, तो यूटिलाइज इट, राइट ओनली सिंगल ग्रुप, डू मल्टीपल रिविजन्स एंड हैव सर्टन टॉपिक्स एज योर फेवरेट टॉपिक्स। मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में वैसा फेवरेट टॉपिक्स होना चाहिए जहाँ पे आपको उसमें से क्वेश्चन आ गया ना तो यू आर लाइक 100% श्योर कि मैं लिख के आऊँगा, वो पूरे का पूरे मार्क्स लेके आऊँगा। वैसा फेवरेट टॉपिक्स लगाओ सब्जेक्ट्स में, हर एक सब्जेक्ट में, तो इट वर्क्स आउट। Okay, all these things will help you all, and in case if you guys need any kind of help, I'm here to support you guys. You can reach out to me. So that's it from my side, and see you all in another video. Let's go.